Hello and welcome to my channel. My name is Ravi Baseen and I'm an IELTS tutor. Today in this video lecture, I'll be discussing some of the most common spelling mistakes which people make while writing English. And it is not only non-native users who make these mistakes, sometimes even native users make these mistakes. Spelling mistakes can prove very costly in the IELTS exam. If you make spelling mistakes in your writing, you'll maybe spoil your impression on the examiner. But if you make spelling mistakes in your listening and writing tests while transferring the answers, it will cost you marks. Sometimes spelling mistakes can bring down your score by half or even one band. So I hope you understand, you realize the importance of writing the correct spelling of every word. Many of my students ask me how they can get rid of spelling mistakes. Please remember that there's only one way to get rid of your mistakes, to correct your mistakes, and that way is to have a separate copy for mistakes and to note down every mistake that you make in that copy along with the correction and a short explanatory note. So I hope that after this lesson you will stop making these spelling mistakes which I'm going to discuss, and you will become more aware about spelling. So let's get down to work. Let's start the lesson. We'll do this lesson in the form of a test so that you are able to assess how well you can spell. I'll give you some choices and you have to choose the one with the correct spelling. So after speaking out a word, I'll give you a few seconds to figure out the correct spelling, and then I'll discuss the word, its spelling, pronunciation and meaning, and I'll also present an example sentence. Give yourself 1 mark for every correct answer and a 0 for every wrong one, so that at the end of the lesson you can find out your score out of 40. So here we go. Here is the first word. Which one do you think is correct? A or B? The correct answer is A. Remember that in and spite are two separate words, so if you join them together and write them as a single word, it will count as a spelling mistake. The meaning of in spite is even though, हालांकि, के बावजूद. याद रखें इसके बाद हमेशा ऑफ यूज़ होता है और इसकी जगह डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ यूज़ नहीं होगा. सेंटेंसेस. इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड ही इज़ क्वाइट फिट. बूढ़ा होने के बावजूद वो बहुत फिट है. यू कैन ऑल्सो से डिस्पाइट बीइंग ओल्ड ही इज़ वेरी फिट. Notice that of is not used after despite. Okay, here's the second word. Instead. Which one do you think is correct? A or B? Okay, this time the correct answer is B. Instead is a single word, not two separate words. The meaning of instead is in place of, की बजाय, की जगह. Example. Instead of calling him, I decided to send him a text message. तो याद रखें कि in spite दो separate words हैं और instead एक single word है. Here's the third word, a lot, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा. बताइए A सही है या B? And the correct answer is B. A and lot are separate words. A lot का मतलब है a large amount or number of something. बहुत ज़्यादा. Example. I've spent a lot of time on this project. वैसे एक और word होता है allot. A-double-L-O-T. इसका मतलब होता है to give something for a particular purpose. कोई चीज़ देना या बांटना. For example, the teacher allotted a separate desk to every student. And here's the fourth word, into. Which one is correct, A or B? Okay, that's an easy one. The correct option is B. Into is a single word. Into का मतलब है toward the inside or middle of something. इसका मतलब होता है में. It's a preposition. For example, he opened the door and came into the room.
Number 5 is up to. Which option do you think is correct? A or B? The correct answer is A. Up and to are two separate words, so you cannot write them like a single word. Up to का meaning है less than or equal to, but not more than. Tak. For example, for this type of crime, a person can be jailed for up to 10 years. 10 साल तक की सजा हो सकती है उसको. Word number 6 is at least. कम से कम. Take a guess whether A is correct or B. The correct answer is A, because at and least are two separate words. You cannot write them together like a single word. The meaning of at least is at the minimum, kam se kam. For example, I need at least 4 days to complete this assignment. Number 7 is gift shop. Which one is correct, A or B? That's an easy one. The correct option is A. Gift and shop are separate words. And the meaning of a gift shop is a shop that sells small items suitable to be given as presents. For example, I bought this pen from a gift shop. Number 8 is bookshop. Which one is correct, A or B? This time the correct answer is B. Bookshop is a single word. And all of you know the meaning of a bookshop, a shop that sells books. For example, there is no bookshop in this area. The next word is nowadays. Which one is correct, A, B or C? Alright, this time there are two correct answers, B and C. Nowadays is a compound word and can be written with or without the hyphens. But nowadays without the hyphens मतलब कि C is a more acceptable form these days. Nowadays का मतलब है these days, presently, आजकल. Example, I am very busy nowadays. The next word is hard work. You must have read this word so many times. So which one do you think is the correct way to spell it? Whether it's a single word or two separate words. The correct answer is A. Hard and work are two separate words. और इसका मीनिंग है great deal of physical, mental or emotional effort, मेहनत. Example, clearing this exam requires a lot of hard work. Okay, next one is really simple. Do not. Which one do you think is the correct way to write it? A or B? And the answer is A. Do and not are separate words. I would like to explain this further. When you add not to a helping verb or a modal, you always write them as separate words. For example, look at the following words. Please note करें कि do not, does not, did not, is not, was not, has not, have not वगैरह को अलग अलग लिखा जाता है. But when you make contractions by using an apostrophe, जब आप इन शब्दों को apostrophe use करके एक word बना देते हैं, then you write them as single words, like this. देखें, do not separate words हैं, लेकिन don't is a single word. Does not अलग अलग, doesn't एक word. Did not separate words हैं, लेकिन didn't single word है. The only exception to this rule is cannot, because it is treated like a single word. Cannot को जोड़ के एक word की तरह लिखा जाता है, and its contraction is also a single word of course.
can't. Word number 12 is beautiful. Which one do you think is correct, A or B? And the answer is B. देखें, फुल में तो डबल एल आता है, लेकिन जब इसे किसी वर्ड के पीछे सफिक्स के तौर पे लगाया जाता है तो एक एल हट जाता है. मतलब किसी वर्ड के पीछे हमेशा FUL ही आता है, FULL कभी नहीं. Here are some examples for you. All of these are adjectives. ध्यान से स्पेलिंग देखें इनके. यूजफुल, पीसफुल, फेथफुल, थैंकफुल, ट्रुथफुल, सारे वर्ड्स के पीछे सिंगल एल आएगा. लेकिन जब इन वर्ड से आप आगे एडवर्ब्स बनाएंगे तो एल डबल हो जाएगा. मतलब किसी वर्ड के एंड में हमेशा FULLY फुली ही आएगा, FULY कभी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज वर्ड्स. यूजफुल से बना यूजफुली, पीसफुल से बना पीसफुली, फेथफुल से बना फेथफुली, थैंकफुल से बना थैंकफुली, एंड में हमेशा डबल LY. Okay, the next word is chocolate, and this time you have 4 choices. So let's see if you are able to figure out the correct spelling of chocolate. The answer is C. याद रखें कि पहले चौको लिखना है, CHOCO, और उसके बाद लेट, LATE लिखना है. इस तरह से आप ये स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं करेंगे. Word number 14 is balloon. Which one do you think is the correct option, A or B? And the correct option is A, BALLOON. Always remember the double L and double O in balloon. And the meaning of balloon is a round rubber bag filled with air or gas. Example, all children love balloons. नेक्स्ट वर्ड है करियर, जो जॉब या वर्क वाला करियर होता है. देखें फिर 4 चॉइसेस में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है. एंड द आंसर इज बी. ये स्पेलिंग मिस्टेक मुझे अपने स्टूडेंट्स के एसेज में बहुत मिलती है. इस वर्ड के स्पेलिंग लोग इसलिए गलत लिखते हैं क्योंकि वो इसे मिसप्रोनाउंस करते हैं. दिस वर्ड इज नॉट कैरियर, इट्स करियर. वैसे कैरियर भी एक वर्ड तो होता है. कैरियर का मतलब कैरी करने वाला, जैसे कि साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है. और उस वर्ड के स्पेलिंग है CARRIER. लेकिन ये वर्ड है करियर. सो इफ यू से इट राइट देन यू वोंट मेक दिस स्पेलिंग मिस्टेक अगेन. द मीनिंग ऑफ करियर इज द सीरीज ऑफ जॉब्स दैट यू डू इन योर वर्किंग लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव अप her career after marriage. Word number 16 is cigarette. देखें A, B, C, D में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है. And the answer is C. याद रखें कि पहले सिगार लिखना है, CIGAR, और उसके बाद ETTE जोड़ना है. ETTE एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की छोटी या फीमेल वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, स्टैच्यू का मतलब होता है बुत, और स्टैचुएट छोटे साइज के बुत को बोलते हैं. स्टार का मतलब सितारा, जैसे मूवीज़ वगैरह में, और अगर फीमेल हो तो उसे बोलते हैं स्टारलेट. नॉवल लंबा होता है और कम पेजेस वाला नॉवल जो है उसको बोलते हैं नॉवलेट. All of you know the meaning of a cigarette, a small paper tube filled with pieces of tobacco that people smoke. Example, he took out a pack of cigarettes and lit one. Light का मतलब रोशनी होता है और एक मतलब जलाना भी होता है. ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी 3 फॉर्म्स हैं, लाइट, लिट, लिट, और अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं लाइट, लाइटेड, लाइटेड. तो इस सेंटेंस में ऐसा भी कह सकते हैं कि he took out a pack of cigarettes and lighted one. Okay, word number 17 is vacuum.
Which one do you think is the correct version, A or B? And the answer is A. VACWM. The W can be tricky. I've never seen any word with a W in English language. वैसे ओल्ड इंग्लिश में W की जगह W ही लिखा जाता था, बाकी वर्ड्स में तो अब W लिखते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया है, लेकिन इस एक वर्ड में अभी भी W ही लिखा जाता है. वैक्यूम का मतलब है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह. एग्जाम्पल, देयर इज जस्ट वैक्यूम इन आउटर स्पेस, और इसे बनता है वैक्यूम क्लीनर. नेक्स्ट वर्ड इज क्यू. बताइए कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी. एंड द आंसर इज सी. क्यू के स्पेलिंग है QUEUE. वैक्यूम के W की तरह ये UE भी किसी और वर्ड में मैंने आज तक नहीं देखा. क्यू का मतलब है अ लाइन ऑफ पीपल और थिंग्स वेटिंग फॉर समथिंग. कतार, लाइन में खड़ा होना, मतलब टू स्टैंड इन अ क्यू, टू वेट इन अ क्यू. एग्जाम्पल, आई हैड टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर 40 minutes टू गेट द टिकट्स. एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड होता है क्यू, CUE, जिसका मीनिंग है हिंट, सिग्नल, साइन, सजेशन. एंड इन द IELTS स्पीकिंग टेस्ट you have to speak on a cue card topic. It means you are given a topic along with some cues or hints on what you have to speak about, and then you have to speak on the topic for 2 minutes with the help of those cues. Number 19 is believe. बताइए A सही है या B? The answer is A. BELIEVE. इसका मतलब टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, किसी बात का विश्वास करना. एग्जाम्पल, सम पीपल बिलीव दैट 13 इज एन अनलकी नंबर. बिलीव से नाउन बनता है बिलीवर, विश्वास करने वाला, स्पेशली भगवान में विश्वास करने वाला. और इसका एंटोनिम है नॉन बिलीवर या डिसबिलीवर या एथीस्ट, वो बंदा जो भगवान में विश्वास नहीं करता. और एक नाउन बनता है बिलीफ, मतलब विश्वास, और उसका एंटोनिम डिसबिलीफ, मतलब अविश्वास. वर्ड नंबर 20 है रिसीव. बताइए ए स्पेलिंग ठीक है या बी वाले स्पेलिंग ठीक है? द आंसर इज बी. रिसीव के स्पेलिंग RECEIVE. इसका मीनिंग है टू गेट समथिंग और टू बी गिवन समथिंग, कुछ पाना, कुछ मिलना. एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम दिल्ली टुडे. आपने नोटिस किया बिलीव में तो IE आया था, लेकिन रिसीव में EI आता है. देखिए, आपको स्पेलिंग का एक थंब रूल बताता हूँ, जैसे आपको कई वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग याद रखने में मदद मिलेगी. और वो थंब रूल है I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C. कहने का मतलब कि जब ये दो लेटर्स I और E इकट्ठे आते हैं तो I पहले आता है और E बाद में आता है, लेकिन जब ये दो लेटर्स C के बाद आते हैं तब ये उल्टी हो जाते हैं, यानी कि E पहले आता है और I बाद में आता है. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए कुछ IE वाले वर्ड्स: पीस, फील्ड, डाई, फ्रेंड, अचीव, प्रीस्ट. आप देख सकते हैं कि इन सारे वर्ड्स में I पहले आ रहा है और E बाद में आ रहा है. अब देखें कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें ये लेटर्स C के बाद इकट्ठे आते हैं. डिसीव मतलब धोखा देना. कंसीव का मतलब किसी प्लान को जन्म देना. परसीव मतलब महसूस करना. सीलिंग का मतलब छत. रिसीट, इसमें P साइलेंट होता है. रिसीट का मतलब रसीद. और कंसीट का मतलब होता है घमंड. आप देख सकते हैं कि इन सारे वर्ड्स में E पहले आ रहा है और I बाद में आ रहा है. कहने का मतलब ये है कि आम तौर पे ये दोनों लेटर्स IE इस तरह से आते हैं,
लेकिन जब सी के बाद ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आते हैं तो इनका सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, ये ई आई करके आते हैं। देखें, थंब रूल उसे कहते हैं जो 100% केसेस में ट्रू नहीं होता पर ज़्यादातर केसेस में ट्रू होता है। इसलिए इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लुक एट दीज वर्ड्स। एंशिएंट मतलब बहुत प्राचीन, ग्लेशियर, साइंस, कॉन्शियंस, इन सभी वर्ड्स में सी के बाद ई आई नहीं बल्कि आई ई आता है, जो कि उस रूल की वायलेशन है। और अब ये वर्ड्स भी देखिए। वेट, एट, हाइट, नेबर, वियर्ड का मतलब होता है बहुत अजीब, और लेजर। इन सारे वर्ड्स में सी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ई पहले है और आई बाद में। You should learn the spelling of all these words carefully, those which follow this rule and those which don't. इन वर्ड्स में बहुत लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन आपको अगर ये पूरी बात समझ आई है तो अब आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्गुमेंट। बताइए, ए वाले स्पेलिंग सही है या बी वाले स्पेलिंग? एंड द आंसर इज बी। आर्गुमेंट के स्पेलिंग होते हैं ARGUMENT। दिस इज़ वेरी ट्रिकी। देखिए, आर्ग्यू के स्पेलिंग तो ARGUE होते हैं, मतलब एंड में ई आता है, लेकिन आर्गुमेंट में ये ई हटा दिया जाता है। आर्गुमेंट का मतलब है वर्बल डिसएग्रीमेंट, बहस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड एन आर्गुमेंट विद हिम ओवर अ पेटी इशू। पेटी का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट या छोटा मोटा। वैसे आर्गुमेंट का एक मतलब तर्क भी होता है, मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए जो लॉजिक या रीजनिंग आप देते हैं उसे कहते हैं आर्गुमेंट। जैसे लॉयर्स कोर्ट में आर्गुमेंट्स पेश करते हैं। नंबर 22 इज मेंटेनेंस। विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन, ए और बी? एंड द आंसर इज बी। इसके स्पेलिंग भी बड़े ट्रिकी हैं। देखिए, मेंटेन के स्पेलिंग में तो MAINTAIN होता है, लेकिन मेंटेनेंस में TAIN को TEN कर दिया जाता है। मेंटेनेंस का मतलब है द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन, रख रखाव। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ नो फंड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज एड्रेस। बताइए कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ए या बी? एंड द आंसर इज बी। रिमेंबर द डबल D एंड डबल S इन एड्रेस। एड्रेस का मतलब है द स्पेसिफिक प्लेस वेयर अ पर्सन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फाउंड एंड वेयर मेल कैन बी रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड योर होम एंड योर बिजनेस एड्रेस। नंबर 24, बताइए अकोमोडेशन के सही स्पेलिंग क्या होंगे? यू हैव 3 ऑप्शंस, A, B एंड C। एंड द आंसर इज C। अकोमोडेशन में डबल C और डबल M आता है। अकोमोडेशन का मतलब है रहने की जगह, अ प्लेस टू लिव। फॉर एग्जाम्पल, इन द टूरिस्ट सीजन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन इन शिमला। द नेक्स्ट वर्ड इज टुमारो। देखिए कौन सी ऑप्शन सही है। द आंसर इज ए। रिमेंबर द सिंगल M एंड डबल R इन टुमारो। इसका मतलब है कल, द डे आफ्टर टुडे। एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। नंबर 26 इज अक्रॉस। देखिए कौन सी ऑप्शन सही है, ए या बी? द आंसर इज बी। अक्रॉस में सिंगल C होता है और डबल S होता है, और इसका मीनिंग है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, आई रैन अक्रॉस द स्ट्रीट।
वर्ड नंबर 27 है नेसेसरी। देखें ए सही है या बी? द आंसर इज ए। रिमेंबर द सिंगल सी एंड डबल एस इन नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब है एसेंशियल, जरूरी, कोई काम करने के लिए आवश्यक। एग्जाम्पल, इट इज नेसेसरी टू हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट इज बिजनेस। Which one is the correct option according to you? The correct option is A. Remember that this word comes from busy, इसलिए इसके स्पेलिंग में BUSI आएगा, BUIS नहीं। बिजनेस का मतलब है the activity of making, buying and selling goods or services. For example, he has taken over his father's business. Next we have calendar. सबके घर में होता है। Which one do you think is the correct option? A or B? The answer is A. याद रखें कि कैलेंडर में पहले A आता है, फिर E और फिर A। इसका मतलब है a chart showing the days, weeks and months of a particular year. Example, according to the calendar, my birthday falls on a Sunday this year. Number 30, definitely. बताइए कौन से स्पेलिंग सही है, A या B? The answer is B. इस वर्ड के स्पेलिंग में लोग गलती करते हैं, इसलिए क्योंकि वो डेफिनेट को मिस प्रोनाउंस करते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन है डेफिनेट, ना कि डेफिनेट। अगर आप डेफिनेट बोलेंगे तो फिर NAT ही लिखेंगे और इसलिए डेफिनेटली के स्पेलिंग भी गलत हो जाएंगे। सो स्टार्ट प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स एज डेफिनेट एंड डेफिनेटली, देन यूल नेवर मेक दिस मिस्टेक अगेन। डेफिनेटली का मतलब है श्योरली, सर्टनली, पक्का। एग्जाम्पल, इफ यू डोंट स्टडी you'll definitely fail the exam. The next word is grammar. Which one do you think is correct, A or B? And the answer is A. याद रखें कि ग्रामर में E नहीं आता है, दोनों जगह A ही यूज होता है। Grammar is a system of rules and principles for speaking and writing a language. How words are combined to make sentences in a language. हर भाषा की अपनी ग्रामर होती है। Example, you need to improve your English grammar. Number 32 is occasion. बताइए A वाले स्पेलिंग सही हैं या B वाले? The answer is B. Remember the double C and the single S in occasion. Occasion का मतलब होता है an event or a time at which something happens, मौका, जैसे कि special occasion, खास मौका। Example, I wear a necktie only on special occasions. Next is restaurant. बताइए A वाले स्पेलिंग सही हैं या B वाले? And the answer is A. Remember that restaurant ends with ANT and not ENT. और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है restaurant, restaurant, restaurant. It's a place where meals are prepared and served to customers. Example, I love eating at that restaurant. Number 34, writing. बताइए कौन सी ऑप्शन सही है? And the answer is A. याद रखें कि राइटिंग में सिंगल T यूज होता है, डबल T नहीं। Number 35, environment. Which one do you think is correct, A or B?
द आंसर इज बी। ज़्यादातर लोग RON में गड़बड़ कर देते हैं। याद रखें कि इस वर्ड को बोलते तो एनवायरनमेंट हैं, लेकिन स्पेलिंग है ENVIRONMENT। इसका मतलब है सराउंडिंग्स, वातावरण। एग्जाम्पल, इट इज एवरी पर्सन्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अगला वर्ड है गवर्नमेंट। ए और बी? एंड द आंसर इज बी। इसमें एन साइलेंट होता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। It's a group of people who manage a country. Example, there is a lot of anger against the government among the farmers. Number 37. बताइए A ऑप्शन सही है या B ऑप्शन? The answer is B. इस वर्ड को भी ज़्यादातर लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, इसलिए स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ट्यूशन, ना कि ट्यूशन। मतलब कि ट्वी, ना कि ट्यू। ट्यूशन, ट्यूशन। और ट्यूशन का मतलब होता है टीचिंग, स्पेशली व्हेन गिवन टू अ स्मॉल ग्रुप और वन पर्सन। एग्जाम्पल, माई सन नीड्स प्राइवेट ट्यूशन इन मैथ्स। नेक्स्ट बताइए डिसिप्लिन के कौन सी सही स्पेलिंग है, A, B और C? द आंसर इज A। याद रखें कि डिसिप्लिन में S और C दोनों यूज होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू बिहेव एंड वर्क इन अ कंट्रोल्ड वे एंड ओबे द रूल्स। अनुशासन। एग्जाम्पल, being a successful sports person requires a lot of discipline and hard work. Next word है awesome। आप सबने सुना हुआ है। बताइए इसके कौन से स्पेलिंग सही हैं, A या B? The correct option is B। इसके स्पेलिंग होते हैं AWESOME। awesome का मतलब है वेरी इंप्रेसिव, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, जबरदस्त, कमाल का। एग्जाम्पल, यू लुक ऑसम इन दिस ड्रेस। एंड द लास्ट वर्ड इज awful. Which one do you think is the correct option, A or B? The answer this time is A। याद रखें कि awesome में तो E यूज करना है, लेकिन awful में E यूज नहीं होता है। हालांकि दोनों वर्ड्स ऑ से आए हैं, AWE, लेकिन awesome में E रखा जाता है, awful में E हटा दिया जाता है। awful का मतलब है एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट, बहुत बुरा या खराब। एग्जाम्पल, यू लुक awful, आर यू सिक? And that's the end of this lesson. I'll be curious to know how much you scored in this test cum tutorial. Do write your score in the comments below. I'll see you soon with another lesson on spelling.